Okay. So we will be talking about errors first. So error is classified in two types. Normally जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें if my logic is incorrect and that is mainly due to poor understanding of the logic or the solution procedure by the user, then that is called logical error. ठीक है, तो आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है तो आपको कोई उसमें लॉजिक नहीं समझ में आया, जैसे if I am talking about I am asking you to find roots of quadratic equation. ठीक है, roots of quadratic equation. Then if I ask you to write this program, तो आपको अगर रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ही नहीं पता है और आप उसमें कोई और ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, आप एक प्रोग्राम के अंदर कुछ और ही फॉर्मूला लगा रहे हैं और या फिर तो उससे आपका मेनली क्या होगा, उसमें रिजल्ट आपका गलत आएगा, राइट? दैट विल बी लॉजिकल एरर. और लेट अस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट write a program to find whether a user कैन कास्ट वोट और नॉट. ठीक है, तो उसमें जैसे कास्टिंग वोट का हमारे पास में एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें यू विल बी टेकिंग इनपुट एज from the user. Age will be the input that will be taken from the user, and let us suppose आप उसमें age you write here if age is equal to 25. So then user can cast vote, but it is not possible. Yes, and if user enters 18 age, then here message will be displayed that he cannot cast vote, right? So this is due to the logic that you have built in your program that is incorrect. So that is called logical error, and that is due to the poor understanding of the logic or the solution procedure. तो आपको अगर logic नहीं पता है, उसके कारण अगर आपका कोई wrong answer आ रहा है आपके program में, it is called logical error. Another one is syntactical error. Now if I ask you, यहाँ आपको एक प्रोग्राम बनाना है, तो आप जब एक प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसके अंदर आपने जैसे हैश इंक्लूड में आप हैश डालना भूल गए हैं. इफ यू हैव रिटन सम, इफ नाउ जैसे अभी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, ठीक है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, सो दिस इज नॉट अ वर्ड, राइट? तो यहाँ अगर आप इसकी जगह लिखते हैं INCLUD इंक्लूड, तो दैट इज अ कीवर्ड, राइट? तो या फिर आप अपने प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स में आपने गड़बड़ कर दी, जैसे हम यहाँ पर आयो स्ट्रीम लिखते हैं तो यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स लगाना भूल गए. सो समटाइम्स व्हेन यू हैड स्टार्टेड प्रोग्रामिंग तो मेन किट कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. देन ये कुछ ब्रैकेट यहाँ पर जो आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई हैं, राइट, तो उसको कोई क्लोज करना भूल जाते हैं. सो इफ some error occurs in your program due to the syntax of the program, that is called syntactical error, and that is mainly due to the poor understanding of the language. तो अगर आपको ये पता है कि यहाँ C++ में ऐसे प्रोग्राम चलेगा और उसमें आप हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लगाते हैं और C के लिए क्या लगाना है stdio.h, तो it may differ with any programming language, but you have to be familiar with the syntax of the language that you are using. So if some error occurs due to the syntax of the program, due to the syntax of the programming language, that is called syntactical error. ठीक है, तो ये दो तरह की एरर्स एग्जिस्ट करती हैं. ओके, नाउ अब इसके अलावा हमारे पास में मींस लॉजिकल एरर और सिंटैक्टिकल एरर के अलावा अगर हमारे पास में कोई एरर आता है, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं. And that will not be mainly an error, but that will be some unusual condition, right? We will check that. So exceptions, they often occur across some peculiar problems other than the logic or syntax errors. तो जब हमारे पास में logical या syntactical कोई error है, इसके अलावा हमारे पास में कुछ error अकर होता है, कुछ प्रॉब्लम अकर होती है, that is called exception. So we have named it as an exception. Okay, so
जनरली हम कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज एन एक्सेप्शन एंड व्हाट इज एन एरर। तो एरर जो होंगी वो या तो लॉजिकल होंगी या सिंटैक्टिकल होंगी, इसको हम सिंटैक्स एरर भी बोल देते हैं। बट इसके अलावा जो कोई प्रॉब्लम अगर करती है हमारे प्रोग्राम में, दैट विल बी द एक्सेप्शन। Okay, that will be the exception. Okay, so what is the exception? We will see. So exceptions are runtime anomalies or unusual conditions that a program may encounter during execution. Now let us suppose मैं इसमें क्या करती हूँ, now this is my program, हम एक program बनाते हैं, I have written hash include iostream, then I am writing using namespace std। तो फिर इंट मेन में मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ दो वेरिएबल्स इंट a कॉमा b एंड देन आई राइट सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड देन आई टेक सी इन, और फिर मैं a को इनपुट कराती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं दे देती हूँ एंडल। ओके, ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करके b के लिए भी वैल्यू एंटर कराती हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ b, एंड देन इसमें मैं b को एंटर करवा देती हूँ। ओके, now what happens, I write here in C, or directly I am writing C out, the result is, और फिर मैं यहाँ एक स्पेस देके देन आई एम राइटिंग a डिवाइडेड बाय b। ओके, तो मैंने क्या किया है, a डिवाइडेड बाय b किया, एंड देन आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम, एंड देन आई एम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट। ओके, तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या लिया है, दो वेरिएबल्स लिए हैं, उसको उसकी वैल्यूज को मैं इनपुट करवा रही हूँ यूजर से, और फिर मैं उन a डिवाइडेड बाय b कर रही हूँ, आई एम डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर, and then I am saying printing the result. The result will get printed. Okay, तो यहाँ पर अगर तो कोई लॉजिक में कुछ डिफरेंस होता तब तो दैट वाज लॉजिकल एरर। कुछ मैंने यहाँ ये ब्रैकेट्स में मैंने कुछ गड़बड़ करी होती, जैसे जनरली कई बार पहले इनिशियली कई स्टूडेंट्स को सी इन एंड सी आउट की ब्रैकेट में कंफ्यूजन होता है, राइट, बट हियर इट इज करेक्ट। सो आई एम एंटरिंग द वैल्यू ऑफ a and I am entering the value of b also। Okay, so the result is 10। Okay, so result इसमें आ गया 10। Now I am compiling and executing the same program, and now again I am entering the values, so it will again take some time, but मैं इसमें आपको फिर ये बताऊंगी कि यहाँ पर कोई ऐसी unusual problem occur करती है, what kind of that problem is, right? Just wait। I could have done 10 से ही कर देती हूँ मैं fast compile। Anyways, ठीक है, मैं इसको सेव एज कर with otherwise I will have to change the relation। So till then it is getting executed, we can get back to the PPT। So exceptions are runtime anomalies or unusual conditions that a program may enter during execution। जब आपने कोई आपके प्रोग्राम में ना तो लॉजिकल एरर आई, ठीक है, ना सिंटैक्टिकल एरर आई, सिंटैक्स भी अगर आपका सही है, बट इसके अलावा देखो अगर लॉजिकल एरर आती तब भी आपका प्रोग्राम तो चलता, ठीक है, लॉजिकल एरर अगर आएगी तो आपका प्रोग्राम चलेगा, सिंटैक्टिकल एरर आएगी तो कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर देगा, क्योंकि सिंटैक्स अगर सही होगा तभी आपका प्रोग्राम आगे रन कर सकता है। भी आगे उस पहले आप उसको अच्छे से पहले कंपाइल करेंगे विदाउट सिंटैक्स एरर, एंड देन इट कैन बी कंपाइल्ड, फाइन। बट इसके अलावा अगर आपके पास में कोई ऐसी एरर्स आती हैं, क्या अनयूजुअल कंडीशंस आती हैं, जिसको हम रन टाइम अनोमलीज बोलते हैं, रन टाइम पे आपके पास में कोई ऐसे अनयूजुअल कंडीशंस आती हैं जिससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि दिस वाज द सेम प्रोग्राम, राइट,
दिस इज द प्रोग्राम। अब ए को मैंने यहाँ 20 इनपुट किया, बी को मैंने यहाँ 0 इनपुट कर दिया। ठीक है, मैंने अब जब 0 इनपुट किया तो ना तो ये अभी टर्मिनेट ये हो जाएगा, तो विदाउट एनी ओके, without any message, it is just saying this problem has caused the program to stop working correctly, right? So यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया है, मैंने यहाँ सिर्फ b, यहाँ जब मैसेज आया एंटर द वैल्यू ऑफ b, तो मैंने 0 इनपुट किया, बट ये प्रोग्राम अपने आप से टर्मिनेट हो गया without any message, without displaying the result is a by b. So ये क्यों हुआ है? Because of 0, right? बिकॉज किसी भी नंबर को आप जब 0 से डिवाइड करेंगे, सो दैट विल, वो तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस जैसे डिवीजन बाय 0, या फिर जैसे आप कोई जैसे एरे है, जैसे आपने एरे लिया 5 का, 5 एलिमेंट्स का आपने एरे लिया, एंड नाउ व्हेनेवर यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू, नाउ यू आर गोइंग, यू वांट टू एक्सेस द 25th एलिमेंट, राइट? 25th एलिमेंट का आप यहाँ पर सी आउट करवाना चाह रहे हैं, या उसको यूज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। So this kind of scenario will also lead to runtime anomalies called exceptions, means access to an array outside of its bound, क्योंकि उसको तो आपने मेमोरी दी ही नहीं है, राइट? आपने तो 5 का एरे डिक्लेयर किया था 5 एलिमेंट्स का, बट 25th का तो आपने उसको मेमोरी में नहीं रखा। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो आल्सो विल लीड टू एक्सेप्शन। व्हाट आर एक्सेप्शंस? दे आर द रन टाइम अनोमलीज। ओके, दीज आर रन टाइम अनोमलीज। अब हमारे पास में जो भी एक्सेप्शंस आती हैं, ये भी 2 तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है एक्सेप्शन? हमने पहले एरर को देखा है, एरर और एक्सेप्शन में क्या फर्क है। जो एरर होती है दैट इज लॉजिकल एरर और सिंटैक्टिकल एरर। इसके अलावा जो भी हमारे प्रोग्राम में कुछ रन टाइम अनोमलीज आएंगी, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, राइट? तो अब ये एक्सेप्शन भी 2 तरीके की होती है। एक होता है सिंक्रोनस एक्सेप्शन एंड अनदर इज एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। ओके, वन इज सिंक्रोनस एक्सेप्शन, जैसे हमने आउट ऑफ रेंज इंडेक्स की बात करी, या ओवरफ्लो, आपका जो एरे है ओवरफ्लो होता है, सो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस एक्सेप्शन। जब एसिंक्रोनस एक्सेप्शन की हम बात करते हैं, दैट इज द एरर that are caused by the events that are beyond the control of the program. अब जैसे आपके पास में डिस्क में अगर स्पेस नहीं है, राइट? आपकी अपनी हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, तो उस दैट विल बी एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। आपके कीबोर्ड में इंटरप्ट आ रही है, दैट इज द एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। अब ये जो है एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस जो है हमारे पास में, दे आर ड्यू टू योर सिस्टम, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम को तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, राइट? प्रोग्राम को आप रेक्टिफाई करके आप उसमें एक्सेप्शंस फाइंड आउट, उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये जो asynchronous kind of exceptions होती हैं, they are dependent on your system, they are not part of your program, they are not actually occurring because of some flaw in your program, तो उसको हम asynchronous exception कहते हैं। और जो बाकी बची exceptions हैं, उनको हम synchronous exceptions कहते हैं। they are due to your program, उसमें कुछ आपने कुछ गलत किया है, या उसमें कुछ ऐसी कंडीशन ऐसी लगी हुई है जिसके कारण exception is occurring। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, हाँ, हमने बी को 0 इनपुट किया। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, बट कोई ऐसी कंडीशन आती है जब आप, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी जैसे एप्स बनी हैं, तो आप एज ए यूजर, अब जैसे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने ये वाला कोड का ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिया, राइट? तो अब यूजर जो है वो बी में जो कुछ भी नंबर इनपुट कर सकता है, right? So for that particular condition where b will be 0, their exception can occur, right? So in those cases we can say that these are the synchronous exceptions। yeah, synchronous exceptions हैं ये, और इनको हम handle कर सकते हैं, but asynchronous exceptions को हम handle नहीं कर सकते in the program। okay, so in C++ only synchronous exceptions can be handled। yeah, so whatever we'll be discussing about the exceptions, it means we are dealing about synchronous exceptions। okay, so what will be the mechanism to handle an exception? देखो, जब हमने ये वाला प्रोग्राम किया, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम when I had entered b as 0,
हमारा प्रोग्राम अपने आप से टर्मिनेट कर गया, राइट। तो हमारे पास में कोई हमें ऐसा जब ये एक्सेप्शन आई तो हमने कोई ऐसा भी सिनेरियो ढूंढना है कि हमारे पास में यहाँ पर एक्सेप्शन जब आई वी हैव टू हैंडल। अब एक्सेप्शन क्या है कि हमारा प्रोग्राम अपने आप से टर्मिनेट कर गया, कोई अनयूजुअल कंडीशन, हमें ये पता ही नहीं चला कि वहां पर क्या था, कोई मैसेज नहीं आया वहां पर, राइट, कोई ऐसा आगे कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुई। So how to deal with this problem? We will be dealing with this problem with the help of three things, right? The process, whole process is called exception handling. उसको हम क्या बोलते हैं? Exception handling, ठीक है? तो exception handling में जो process हमारा रहेगा वो क्या है? सबसे पहले एक जो problem होती है वो occur करती है, so you have to identify the problem. Okay, so we have to first identify the problem कि problem कहाँ पर है हमारे प्रोग्राम में, या नॉर्मली हम बात करते हैं, आप पहले प्रोग्राम पे हम बाद में आएंगे। नॉर्मली इफ यू आर कमिंग अक्रॉस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट, whether it is like power failure in your house, so first you have to identify that there is a power failure, right? चाहे इन्वर्टर पे चीजें बाकी चीजें चल रही हैं बट देयर इज अ पावर फेलियर, ठीक है। देन यू हैव टू टेल दैट tell that problem to someone, right? Tell that problem to the concerned person. किसको करोगे? To the concerned person. कोई भी, जैसे कोई आपके पास में इलेक्ट्रिशियन है, so you'll be telling that problem. He will be receiving he will receive the problem, or you can say आपकी प्रॉब्लम को रिसीव करेगा, he will be listening to the problem and then he'll find the solution, ठीक है। तो ये आपके पास में एंड में सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो ये जो चार चीजों का प्रोसेस है ये हम प्रोग्राम में भी लगाएंगे। सो फर्स्ट आई एम टेलिंग दीज थिंग्स in terms of this exception handling. So first in the exception handling mechanism, first we have to find the problem. Okay, first step will be the finding the problem. इसको हम hit the exception भी बोलते हैं। तो first step is to find the problem or identify the problem. पहले आपको problem के बारे में तो पता होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम कहाँ है, फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये a बाय b में यहाँ पर प्रॉब्लम है, b को आप 0 इनपुट कर दीजिए वो तो ठीक है, लेकिन जब भी मैं इसको a बाय b करती हूँ तो फिर मेरे रिजल्ट में प्रॉब्लम है। और आई कैन ऑल्सो से लाइक दिस कि अगर मैं यहाँ a into b करती हूँ, right? So in this line I do not have any problem, but problem kahan hai? A by b. Whenever that any number is divided by 0, that will create problem if b is entered 0. Okay, so this will be the identification of the problem, and then we have to inform that that an error has occurred. Yahan par hamare paas mein ek error has occurred, and then it will be receive the error information and then take corrective action, राइट। सो ये प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे एक प्रोग्राम के अंदर भी। कैसे? दैट फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यहाँ पर ये प्रॉब्लम अकर होती है ठीक है। तो अगेन देन वी विल बी सेइंग कि यहाँ पर वी हैव टू इन्फॉर्म दैट एन एरर हैज अकर्ड, राइट। सो उसमें हम थ्रो कीवर्ड यूज करेंगे। देन रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन, तो उसमें हम कैच ब्लॉक यूज करेंगे एंड देन टेक करेक्टिव एक्शन। उसमें हम एक कैच ब्लॉक में जो आप सोल्यूशन होगा वो हम रखेंगे, ठीक है। तो एक प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग हम करेंगे, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले ये कर लेते हैं। हमारे पास में ये दो ब्लॉक्स रहेंगे जब भी हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना है। सो आई विल बी हैविंग टू blocks, okay, one is try block, another is catch block. तो आपको याद होगा कि जब भी हम कोई, आपको याद है कि ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक का मतलब ये सिंपल ये ब्रैकेट, राइट। तो अगर मैंने मेन के अंदर, जैसे मैंने ये मेन लिखा है, तो यहाँ क्या होगा? दिस इज द मेन के लिए फंक्शन ब्लॉक है, राइट। तो उसके लिए अगर इसके अंदर भी मुझे एक ब्लॉक बनाना है तो ये दिस इज अनदर ब्लॉक, ठीक है। सो दिस इज अनदर ब्लॉक। हम क्या करते हैं,
जब भी यहाँ हम बात करेंगे वी विल बी क्रिएटिंग 2 ब्लॉक्स, ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। अब इसको मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, बिकॉज वी हैव मीटिंग नाउ विद एचओडी सर। वो अभी मेरे को यहाँ पर अभी लेक्चर इसको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोग्राम विल टेक टाइम मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ ट्राई एंड कैच ब्लॉक विल वर्क। उसमें थ्रो एक कीवर्ड होता है, तो ये तीनों कीवर्ड्स के बारे में आई विल इन्फॉर्म यू इन द लेटर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगी, हमारी कल है क्लास, है ना, तो उसमें मैं फिर आपको ये प्रोग्राम कराऊंगी। देन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्राई, थ्रो एंड कैच, एंड देन फर्दर वी कैन मूव विद programs, other programs of this exception handling. Okay? Any question you have, please ask me.